5वीं आयत से पढ़ेंगे। Matthew chapter 8 verses 5. मत्ती 8 उसके 5 से। Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him. और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती करने लगा, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है, लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। And Jesus said to him, I will come and heal him. और यीशु ने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। The centurion was telling Jesus that you don't need to come, you just have to release a word. वो सूबेदार यीशु से कह रहा था कि प्रभु, आपको आने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप एक वचन कह दे। Amen. आमेन। And Jesus marveled at the centurion's faith. और यीशु हैरान हो गए इस सूबेदार के विश्वास को देखकर। A great faith is a faith that understands how the word works. एक महान विश्वास वो है जिसको ये पता है कि वचन क्या काम करता है। Amen. If you would only know अगर आपको केवल इतना पता लग गया that our labor in the kingdom is to just find the spoken word of God. कि राज्य में आने के बाद जो हमें मेहनत करनी है वो बस इतनी करनी है कि जो बोला गया वचन है वो खोजना है। Amen. The breakthrough that you're looking for, जो छुटकारा आपको चाहिए, the healing that you're looking जो for, चंगाई आप चाहते the हैं, deliverance that you're looking जो for, आजादी चाहते the हैं, promotion that you're looking जो for, तरक्की चाहते हैं, the prosperity you're looking for, जो समृद्धि चाहते हैं, it's in the word. वो सब कुछ वचन में छुपी है। It's not in a bottle of oil. तेल की बोतल में नहीं है, It's not in a bottle of water. पानी की बोतल में नहीं है, It's not in any man's hand. किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, It's in the word. लेकिन वो वचन में छुपा है। Amen. And if you can learn to dig deep and take out that word which is for you, और अगर आप ये सीख गए कि इस वचन के गहराई में जा करके उस खजाने को निकालना जो आपके लिए रखा है, that word will not go void. वो वचन कभी खाली नहीं जाएगा आपके जीवन से। Amen. So many people are looking for so many things. बहुत से लोग बहुत कुछ तलाश रहे हैं, All we need is a word. हमें सिर्फ उसका वचन चाहिए। Amen. And this centurion knew that. He said, Jesus, if you would only speak a word. और इस सूबेदार को ये बात पता थी, इसलिए उसने कहा, यीशु, केवल अगर आप वचन ही कह दोगे। Amen. आमेन। If you would only speak a word, my servant would be healed. अगर आप केवल वचन बोल दोगे तो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। If we would only learn अगर हम केवल ये सीख गए to receive the word of God by faith. परमेश्वर के वचन को विश्वास से ग्रहण करना। You know that every promise in the word of God, God has given it for you. आपको पता है परमेश्वर ने अपने वचन में हर एक वादा आपके लिए ही दिया है, But it will not happen automatically. We will have to learn to possess it by faith. लेकिन वो अपने आप पूरा नहीं होता, हमें सीखना पड़ेगा विश्वास से उस वादे पर कब्जा करना। Amen. That's why we come to church. इसीलिए हम कलीसिया आते A church is not a religious building. हैं। कलीसिया कोई धार्मिक जगह नहीं है। A church is the educational institute of the kingdom. कलीसिया राज्य के द्वारा रखा गया पढ़ाने और प्रशिक्षित करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है। Amen. Where the children of God are trained so that they can walk from victory to victory to victory to victory. जिसको परमेश्वर पिता ने इसलिए रखा है ताकि वो परमेश्वर के बेटों और बेटियों को सिखाए कि कैसे वो जय में अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जय में जी सकते हैं। Amen. Church, if you will only understand that, and if you can only get that our answer is in the word. अगर आप केवल ये समझ गए कि हमारा जो उत्तर है, जो जवाब हम ढूंढ रहे हैं, वो वचन ही में मिलेगा। When you open your Bible, when you read Genesis, the way God introduces himself is a creator God. In the beginning, God created heavens and the earth. जब आप उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर ने अपना परिचय दिया तो उसने एक रचनात्मक परमेश्वर के रूप में अपना परिचय दिया, ये कहते हुए कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। And how did he create? और कैसे बनाया उसने? He spoke. उसने बोला,
He spoke the word. उसने वचन को बोला. Amen. आमेन. As our God is a creator God because he still speaks. हमारा परमेश्वर आज भी रचनात्मक है क्योंकि वो आज भी बोलता है. Amen. And whatever you see around you, he created everything by speaking. और जो कुछ आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सब कुछ उसने बनाया बोल करके. Get it? लेकिन हम ये नहीं समझते. We think our words mean nothing. हमें लगता है हमारे शब्दों की कोई मूल्य थोड़ी है, कोई कीमत थोड़ी है. Before the words were used for communication, Come on. words were used for creation. इससे पहले कि शब्दों का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए किया जाता, शब्दों का इस्तेमाल रचना करने के लिए किया गया है. Amen. We think it's just noise creating some vibration in our eardrums. No, no, no. Words are very powerful in the spirit realm. हमें लगता है केवल कुछ आवाज हो रही है, कुछ सुनाई दे रहा है क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, लेकिन शब्दों की बहुत सामर्थ्य है आत्मिक दुनिया में. See, we think the answer to our healing is in a bottle of medicine. The centurion knew that the answer to his servant's healing was a spoken word. हमें लगता है कि हमारी चंगाई का जो रहस्य है वो एक शीशी में एक दवाई की गोली में बंद है, लेकिन इस सूबेदार को पता था कि उसके नौकर की चंगाई का जो रहस्य है वो बोले गए वचन में छुपा है. Amen. We always want something tangible. Give me something so that I can know. But Jesus said this centurion's faith is great because he understood the power of a word that is released under the unction of the Holy Spirit. हम हमेशा तलाशते हैं कि कुछ छूने के लिए हमें मिल जाए, जिसको हम कुछ ठोस, जिसको परख कर हम कह सके कि हाँ इससे हो जाएगा. लेकिन इस सूबेदार ने उस वचन पर, उस बोले गए वचन पर भरोसा कर लिया, इसीलिए उसका विश्वास महान गया. And you know what is the amazing thing? आपको पता है अद्भुत बात क्या है? This centurion didn't know that Jesus is the Son of God. इस सूबेदार को ये नहीं पता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है. He didn't come to Jesus as a Son of God. He knew Jesus as the prophet, as the man of God. वो यीशु के पास इसलिए नहीं आया था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन इसलिए कि यीशु एक भविष्यद्वक्ता है, ये सोचकर. Amen. Look around you. अपने आसपास देखें How are blessings invoked? कैसे आपके जीवन में आशीषें काम करती हैं. Through speaking. बोलने के द्वारा. How did Isaac bless Jacob? इसहाक ने याकूब को कैसे आशीष दिया? He spoke. उसने बोला. There is something that Jews understood that we don't understand. कुछ तो है जो यहूदी लोग समझते थे और हम नहीं समझते. God bless you has become such a cliche. प्रभु आपको आशीष दे एक कहावत बन गया है. Sometimes people use it when they're offended. कई बार जब नाराज होते हैं लोग तब इस्तेमाल करते हैं उसको. Oh, God bless you. प्रभु तुझे आशीष दे. Oh, God bless you. प्रभु तुझे आशीष दे. We say it as if it's nothing. हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं है इसका. But blessings carry great weight in the spiritual realm. लेकिन आशीषों का बहुत भारी वजन है आत्मिक दुनिया में. When a mom and dad जब एक माँ बाप start to bless their children, अपने बच्चे को आशीष देना शुरू करते हैं, something happens in the spiritual realm. आत्मिक दुनिया में कुछ बहुत भारी होता है. Amen. Do you know the power of words? क्या आप शब्दों की सामर्थ्य को जानते हैं? When John the Baptist had to be born, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होना his था, father Zechariah, who was a high priest, उसका पिता जकराया जो महायाजक था उस समय, he didn't believe. उसने विश्वास नहीं करा कि उसको उस बूढ़ी उम्र में बच्चा हो सकता है. He was doubting. वो शक कर रहा था. So God had to shut his mouth so that John the Baptist could be born. तो परमेश्वर को जकराया का मुंह बंद करना पड़ा जब तक उसका जन्म नहीं हुआ उसके बेटे का, जॉन द बैप्टिस्ट का. For many people, their miracle has been aborted because of their big mouth. कई लोगों की जिंदगी में जो काम पूरा हो जाना चाहिए था, जो चमत्कार उनको मिल जाना चाहिए था, उनके बड़े मुंह की वजह से नहीं मिल पाया. Because they keep speaking what God doesn't speak about them. क्योंकि वो हमेशा वो बोलते रहे जो परमेश्वर के बारे में नहीं बोल रहा. Let's see a scripture. आइए हम एक आयत देखते हैं. Are you ready? Proverbs 30:32. नीति वचन 30 उसका 32. If you have done foolishly in exalting yourself, or if you have thought evil, lay your hand upon your mouth. यदि तूने अपनी बढ़ाई करने की मूर्खता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख. God is saying,
If you are thinking evil in your heart, बाइबल कह रही है अगर तू अपने दिल में कुछ बुरा सोच रहा है, put a hand on your mouth, अपने हाथ को अपने मुंह पर रख दे, because sooner or later क्योंकि आज नहीं तो कल that evil thought is going to become evil word. वो बुरा विचार आज नहीं तो कल बुरे शब्द बन सकता है. And the Bible says और बाइबल कहती है that you are in bondage because of the words of your mouth. बाइबल कहती है तू शिकंजे में फंसता है अपने ही शब्दों के कारण. Some people are like, oh, Satan is so powerful. Satan isn't that powerful. He cannot do anything unless he gets our agreement. और कुछ लोग कहते हैं शैतान बहुत शक्तिशाली है, शैतान ये करता है वो, लेकिन शैतान बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है. वो कुछ नहीं कर सकता जब तक हम सहमत ना हो उसके साथ जो वो करना चाहता है. He is looking for your agreement, church. वो आपकी हाँ को तलाश रहा है चर्च. And what he does is he gives you thoughts. और वो ये करता है वो आपको विचार देता है. And he wants you to meditate on them, think on them. और वो चाहता है कि आप उन विचारों के बारे में सोचें, उन पर मनन करते रहें. That's how he tempted Eve. इस तरह से उसने हवा को बेवकूफ बनाया. Has God really said? क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? Has God really healed you? क्या परमेश्वर ने सच में तुम्हें ठीक कर दिया? Then why do you have this symptom? तो फिर ये लक्षण क्यों दिख रहे हैं? Has God really forgiven you? क्या परमेश्वर ने तुम्हें सच में माफ किया? Is God really good? क्या परमेश्वर सच में भला है? And sooner or later, when we keep meditating on those thoughts, और आज नहीं तो कल जब हम उन विचारों में मनन करते रहें, they start to spill out of our mouth. वो हमारे मुंह से निकलने लग जाते हैं. And demons are waiting for our words. और दुष्ट आत्माएं इंतजार कर रही हैं हमारे शब्दों का. Should I continue? आगे बताऊं? But what would happen if we would fill our heart with the word of God? लेकिन क्या होगा अगर अपने दिल को हमने परमेश्वर के वचन से भर डाला तो? And you keep meditating on the word day and night. और हम वचन पर मनन करते रहे दिन और रात. You know, so many people are poor not because they do not have good opportunities. बहुत से लोग गरीब इसलिए नहीं कि उनके पास अच्छे मौके नहीं आते. So many people are poor because the enemy has still bound them in poverty in their mind. वो इसलिए गरीब है क्योंकि दुश्मन ने आज भी उनके मानसिकता में उनको गरीबी में बांध रखा है. Because they still believe क्योंकि वो आज भी ये मानते हैं that it's God who wants us poor, it's God who wants us sick. क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम बीमार रहें, हम गरीब रहें. The Bible says, let the name of God be magnified who is pleased in the prosperity of his servants. बाइबल कहती है परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए जो अपने सेवकों की समृद्धि से प्रसन्न होता है. If God was pleased by the prosperity of his servants in the old covenant, how much more when we are his sons and daughters in the new covenant? जब परमेश्वर पुराने नियम में अपने दासों के अमीर होने से खुश होता था, प्रसन्न होता था, तो और भी कितना ज्यादा जब नई वाचा में हम उसके बेटे और बेटियां ठहरे हैं और जब हम समृद्ध होते हैं तो वो प्रसन्न होगा. Amen. आमीन. Satan is after our thoughts, शैतान हमारे विचारों के पीछे है, but so is God. लेकिन परमेश्वर भी हमारे विचारों के पीछे है. Because the enemy knows where the real deal is. क्योंकि दुश्मन को पता है असली मुद्दा क्या है. If he can bound you with wrong thinking in your heart, you will always have wrong manifestation in your life. अगर आपके दिल में गलत विचारधारा में, बुरी विचारधारा में उसने आपको बांध दिया तो आपके जीवन में उसका प्रभाव गलत ही दिखाई देगा. If you have thought evil, lay your hand upon your mouth. अगर आपने कुछ बुरा सोचा है तो अपने मुंह पर अपना हाथ रख दें. Amen. आमीन. Do you know what is evil in God's definition? पता है परमेश्वर की नजरों में बुरा क्या है? Any thought of unbelief is an evil thought. अविश्वास का कोई भी विचार. The Bible calls evil heart an unbelieving heart. बाइबल कहती है एक दुष्ट हृदय जो विश्वास नहीं करता. A heart that does not believe in the goodness of God is an evil heart. एक हृदय जो ये नहीं मानता कि परमेश्वर सच में भला है वो एक दुष्ट हृदय है. Amen. Are you alive, church? क्या आप जीवित हैं कलीसिया? Amen.
आमेन। Let me tell you a principle. मैं एक सिद्धांत बता दूं, Everything in the kingdom, whatever is happening around us, it's according to our attitude to the word of God. जो कुछ हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द हो रहा है वो इसलिए हो रहा है जो मानसिकता हम परमेश्वर के वचन की ओर रखते हैं। Can I say this? क्या मैं कहूं? Your altitude in the kingdom depends upon your attitude towards the word. राज्य में आपकी ऊंचाई निर्भर है परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी मानसिकता को लेकर। The quality of life that you will live on earth depends upon the attitude you have towards the word of God. जिस श्रेणी का जीवन आप पृथ्वी पर जिएंगे वो निर्भर करता है उस मानसिकता पर या उस आदर पर जो आप परमेश्वर के वचन पर रखते हैं। Amen. Fill your mouth with the word. अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भरना। I said, fill your mouth with the word. मैंने कहा अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से Fill your mouth with the word. अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भर लो। Because the Bible says the word of God which is sent forth does not come back void. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जब अपने वचन को भेजता है तो वो खाली वापस नहीं आता, But it fulfills for which it was sent. लेकिन जिस मकसद के लिए वो भेजा गया उसको पूरा कर कर वापस आता है। Let me tell you a principle. एक सिद्धांत बता देता हूं, Mark 4:24. मरकुस 4 उसका 24। Mark 4:24. Then he said to them, take heed what you hear. और तब उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। What do you hear? क्या सुनते हो? Jesus is saying, don't be casual about what you hear. यीशु कह रहा है इस बात में ढिलाई मत देना कि आप क्या सुन रहे हो, Because whatever you are hearing is doing something in your heart. क्योंकि जो कुछ आप सुन रहे हो आपके दिल में कुछ पैदा करता है। Amen? Let me tell you this principle from the word. ये सिद्धांत मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं। Take heed what you hear. चौकस रहो कि क्या सुनते हो। With the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given. जिस नाप से तुम नापते हो उसी के लिए तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिस With what measure you measure, it will be measured back to you. जिस नाप से आप नापेंगे उसी नाप के मुताबिक आपके लिए वापस लौटा जाएगा। It's not God who decides measure in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में किसी भी बात के स्तर का निर्णय नहीं करता, You decide. आप करते हैं। You measure, आप नापते हैं उस बात को and it is measured back to you. और वो वापस आपको नाप के लौटाया जाता है। Amen, church. Are you getting this? See, 10 people can hear the same thing, 10 लोग एक ही बात सुन रहे हो सकते हैं and they can come up with 10 different meanings. और 10 अलग अर्थ निकाल सकते हैं उसी बात Because we don't hear with our ears, we hear with our heart. क्योंकि हम अपने इन कानों से नहीं लेकिन अपने हृदय से सुनते हैं बातों को। Somebody told you your son was there in the street. किसी ने आपसे कहा आपका बेटा वहां सड़क पर था, Just this. सिर्फ इतना ही कहा। But the mom is seeing माँ देख रही है that somebody is coming in a car kidnapping her son. कोई आके गाड़ी में बिठा के उसके बेटे को अगवा करके ले गया। That was not said. ये तो नहीं कहा गया But था, she's hearing it like that. लेकिन वो ऐसा सुन रही है। She's measuring it with fear. वो भय से उस बात को नाप रही है। But then there is another mother लेकिन एक और माँ है who has been filling her heart with the word. जो अपने हृदय को वचन से भरती आई है, And whenever some news like this comes, instantly she starts to measure it with faith and starts declaring the promises of God. लेकिन जब कभी ऐसी कोई खबर आती है वो विश्वास से उस बात को नापती है और परमेश्वर के वादों को बोलने लगती है। When you hear the word, जब आप वचन सुनते हैं how do you measure it? आप कैसे उसको नापते हैं? Do you measure it with faith? विश्वास से Or you measure it with doubt? या शक से? If you measure it with faith, अगर आप विश्वास से नापते हैं the उसको Bible says it will be measured back to you. तो बाइबल कहती है आपको वापस उसी माप से लौटाया जाएगा। When anything is declared and you say, yes, amen, I believe it, it is done to you in same accordance as you believe. जब आप
किसी बात को सुनते और कहते हैं हाँ और आमीन, तो आपके लिए वो उसी नाप से लौटाया जाता है जैसा आपने नापा है। I love how the Amplified Classic Version says this verse. और मुझे बहुत पसंद है एम्पलीफाइड क्लासिक में जैसे इस आयत को लिखा है। And he said to them, और उसने उनसे कहा, be careful what you are hearing. ध्यान रखो जो तुम सुन रहे हो उस बात का। The measure of thought and study you give to the truth you hear will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you. जिस रीति का विचार और ध्यान आप उस सत्य को देंगे जो आप सुन रहे हैं, उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार उसकी कीमत आपको वापस लौटाई जाएगी। You know, it's sad, but majority of people hear the word casually. और ये दुख की बात है, लेकिन अधिकतर लोग बिना ध्यान के वचन को सुनते हैं। They're casual. उनको फर्क नहीं पड़ता। And they measure it as if it's not important, and they are measured back into the same measure. और जब वो उसको नापते हैं तो ऐसे नापते हैं जैसे उसमें कोई वजन नहीं है और वापस उनको वैसे ही लौटाया जाता है। But there are few. लेकिन कुछ लोग हैं। Jesus said there are few who are good ground. यीशु ने कहा कुछ हैं जो अच्छी भूमि है। They receive the word वो वचन को ग्रहण करते हैं with all their heart. अपने पूरे दिल से। They understand it. वो उसको समझते हैं। The seed goes deeper into their heart and brings forth fruit. वो बीज उनके दिल की गहराई में चला जाता है और बहुत फल लेकर आता है। You know, a word is shared एक वचन दिया and जाता somebody है says, I don't believe this. और कोई कहता है मैं नहीं मानता ये सब, Somebody says, I believe it. लेकिन कोई कहता है मैं विश्वास करता हूँ इस बात पे। The amazing thing is, अद्भुत बात it है, will happen accordingly to both of them. दोनों की जिंदगी में उनके मुताबिक होगा। Because with the same measure they measure, it's measured back to them. क्योंकि जिस नाप से वो नाप रहे हैं उसी से उनको वापस लौटाया जाता है। Amen. I am here to declare to you that your heavenly Father is a good Father. मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आपका स्वर्गीय पिता एक बहुत अच्छा पिता है। No sickness comes from him. कोई बीमारी उसकी ओर से नहीं आती। No death, destruction comes from him. कोई नाश, मृत्यु उसकी ओर से नहीं आते। Amen. He says the thought that I think towards you, they are for your good and not for your evil. और वो कहता है जो विचार मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ वो तुम्हारे भले के हैं, तुम्हारी बुराई के नहीं हैं। To give you a future and to give you a hope. आपको एक भविष्य देने के लिए और एक आशा देने के लिए है। Amen, church. Your Father thinks good thoughts about you. आपका पिता आपके विषय में अच्छी बातें सोचता है। Amen. And if we can only tap into the thoughts of our Heavenly Father and start to think about ourselves the way our Heavenly Father thinks about us, you know what will happen? Satan will have no foothold in our lives. और अगर हम अपने बारे में वैसे ही सोचने लग गए जैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में सोचता है, हमारी जिंदगी में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां शैतान पांव रख सकेगा। Amen, church. We cannot afford to think anything that God doesn't think about us. ये बहुत भारी पड़ता है अगर हम कुछ ऐसा सोच जो परमेश्वर हमारे बारे में नहीं सोचता। We have to create an image of ourselves as our Heavenly Father thinks about us. हमें हमारी खुद की वो छवि देखना जरूरी है जो परमेश्वर पिता हमारे बारे में देखते हैं। Amen. You are loved. आप प्रेम किए You गए, are cherished. आपके कारण वो You are आनंदित है। celebrated. आपके कारण वो हर्ष उत्सव मनाता है। You are forgiven. आप माफ किए You गए, are anointed. आप अभिषेक किए You are गए, redeemed. आप छुड़ाए गए, You are called. बुलाए गए हैं। Amen. You are the son and the daughter of Most High God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटी That's ठहरे। your identity. ये आपकी पहचान है। Don't take any label that God that the world gives you. कोई भी ऐसा नाम जो दुनिया आपको देती है उसको ना ग्रहण करें। Be very careful बहुत ध्यान दें of the labels that people give you. वो लेबल्स जो दुनिया आप पर लगाती है उनके लिए। Oh, I'm feeling depressed. ओ मुझे तनाव सा महसूस होता है। You went to a psychiatrist आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए, and he says, उसने कहा you are depressed. अरे तुम तो तनाव में हो, Put a tag on you. एक ठप्पा लगा दिया आपके माथे You पर। believe on that tag अगर वो ठप्पा मान लोगे and then you say, I'm depressed. तो फिर ये बोलोगे मैं तनाव में हूँ, I'm depressed. मैं तनाव का शिकार हूँ। And the world keeps giving you. और दुनिया भी इस Oh, बात को you are बोलती not रहेगी, confident. अरे तुम्हें साहस नहीं है तुम्हारे अंदर। Now there are two tags. I'm depressed and I'm not confident. अब दो ठप्पे लग गए दिमाग पर, पहला तो ये कि मैं तनाव का शिकार हूँ और दूसरा कि मुझ में साहस नहीं है। And the world keeps giving us these false identities and we keep believing them.
और दुनिया ये झूठे नाम देती रहती है और हमको मानते रहते हैं, मानते चले जाते हैं. But what if we would believe what our Heavenly Father says about us? लेकिन क्या होगा अगर हमने वो बातें माननी शुरू कर दी जो स्वर्गीय पिता हमारे बारे में कहता है. Amen. It does not matter what the word says about you. What matters is what you say to you. दुनिया आपके बारे में क्या कहती है उसका कोई कीमत नहीं है अगर आपको पता है आप अपने बारे में क्या कहते हो. When you're alone, जब आप अकेले हो, who do you say you are? आप क्या कहते हो कि आप कौन हो? Do you see yourself as a defeated person? क्या आप अपने आप को एक हारा हुआ इंसान के रूप में Or do you see yourself as someone who is victorious in Christ Jesus? या अपने आप को आप मसीह में जयवंत देखते हो? Amen, church. The enemy is after our thoughts. वो दुश्मन हमारे Because it विचारों doesn't के start पीछे with speaking, it starts with thinking. क्योंकि इसकी शुरुआत बोलने से नहीं सोचने से होती है. And we are very casual about our thoughts. और हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हम जो बातें सोचते I हैं. say, oh, it's just the thoughts. पता है, मेरे विचार ही तो हैं. But thoughts are Lekin- going to become words. लेकिन विचार ही आगे जाके शब्द बनते हैं And words create. और शब्द रचना करते हैं. I'll say it again. मैं दोबारा कहता हूँ, Thoughts विचार will become words and words will create. विचार वचन बन जाएंगे और वचन रचना कर देंगे. Because many of us don't know how the spiritual realm works. क्योंकि हम में से बहुत लोग नहीं जानते आत्मिक दुनिया कैसे काम करती है. See, I told you there was a time where in Monica we were under heavy debts. मैंने आपको बताया एक ऐसा समय था जब मैं और मोनिका बहुत भारी कर्जे के अधीन थे. Constant calls from the bank. निरंतर बैंक से कॉल आते थे हमें. We used to feel so ashamed. हमें बहुत शर्म आती थी उसके कारण. But then God started to teach me about His Word. लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के बारे में सिखाना शुरू कर दिया. I didn't go to anybody to beg, hey, will you pay my debt? मैं किसी के पास भीख मांगते हुए नहीं गया, मेरा कर्जा पे कर दो प्लीज. Please. प्लीज. No. नहीं. I went to my room. मैं अपने कमरे में गया, I shut my door. दरवाजा बंद किया I opened the Word. और मैंने वचन खोल लिया. And I found out promises that my Father had given to me. और मैंने वो वायदे ढूंढ निकाले जो मेरे पिता ने मुझे दिए हैं. The Bible says every promise of God is fulfilled with a amen and a resounding yes. बाइबल कहती है परमेश्वर का हर एक वायदा आमीन और एक गूंजती हुई हाँ के साथ पूरा होता है. So I went to my room, तो मैं अपने कमरे में गया, shut my door, दरवाजा बंद किया, lifted my hands, अपने हाथों को उठाया and I said, blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. और मैंने कहा मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता वो धन्य हो क्योंकि उसने मुझे हर एक आशीष से आशीषित कर दिया है आत्मिक स्तर में. Oh, Pastor, how many times you said it? पास्टर आपने कितनी बार बोला होगा इस बात को? Thousands of times. हजारों बार बोला होगा शायद. Until I start believing I am blessed. जब तक मेरे दिल में मैं विश्वास करने नहीं लग गया कि मैं सच में आशीषित हो चुका हूं. When we had nothing, जब हमारे पास कुछ नहीं था but we had the Word. लेकिन वचन था हमारे पास. And I kept saying it. और मैं कहता रहा. Day in, day out. That time I used to go to church sometimes so that I will have undivided attention. And I would give my undivided attention to the Lord. I didn't beg one time. Didn't tell God to change my situation. Just spoke the word. Just spoke the word. What did I see? Nothing. But I kept on speaking the word. Day after day. Hours after hours. Thank you, Father. I am blessed. Thank you, Father. I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Lord Jesus. I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Father. I am blessed. और उस समय मैं कलीसिया जाया करता था पर मैं अपना ऐसा ध्यान जो भटकने ना पाए मैं परमेश्वर के सामने लेकर के आता, दरवाजा बंद करके उसके सामने मैं इस बात की घोषणा करते रहता, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूं, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूं, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूं. The word that we are preaching, जो वचन हम आपको सिखा रहे हैं we are living it. हम उसको जी रहे हैं. It's not a good doctrine. ये कोई अच्छी शिक्षा नहीं है सिर्फ. You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? My finances began to change. मेरी आर्थिक परिस्थितियां बदलने लगी. Not only I was free of debts, सिर्फ इतना नहीं कि मैं कर्जे से आजाद हो गया,
we started clearing the debts of other believers. हम दूसरे विश्वासियों के कर्जे चुकाने लगे. Why? क्यों? Was it my ability? क्या वो मेरी क्षमता थी? नहीं. If it was my ability, I would have thought, what other work can I do? अगर मेरी खुद की क्षमता होती तो मैं सोचता कि मैं और क्या काम कर सकता Should I start a business? एक व्यवसाय शुरू कर देता हूँ. Let me find some new opportunity. एक नया मौका तलाशता हूँ कहीं से. If you're a businessman, do that. अगर आप व्यवसायक हो तो करो. But let me tell you, लेकिन मैं बता दूं, the Bible says it is the blessing of the Lord that makes one rich, and He adds no sorrow with it. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आशीषें हैं जो एक व्यक्ति को धनवान बनाती हैं और परमेश्वर उसमें कोई दुविधा नहीं मिलाता, कोई दुख नहीं मिलाता. Still today, you know what is our testimony? आज भी आपको पता है हमारी गवाही क्या है? That this church stands without $1 support from any man. That's why we call it Faith Arena, because it's Jesus Christ who has sponsored this church. आज तक हमारी गवाही ये है कि ये कलीसिया बिना भी किसी मनुष्य के $1 दिए बिना भी चलती है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम हमने विश्वास से चलने वाली अरीना रखा, क्योंकि परमेश्वर इसका स्पॉन्सर है. Amen? Some people don't believe it. कई लोग नहीं मानते ये बात. They are measuring it. उनको They say, विश्वास. So we say, But those who believe, they receive. Amen? I said those who believe, they receive, and they walk in the same favor, in the same grace, in the same anointing. और कई लोग विश्वास नहीं करते इस बात का जब हम कहते हैं, लेकिन वो जिस नाप से नापते हैं उनको उसी नाप से वापस लौटाया जाएगा. लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनको उसके मुताबिक, उसी अभिषेक के मुताबिक, उसी विश्वास के मुताबिक वापस लौटाया जाएगा. A church is not built by finances. A church is built by faith. And faith comes from the written word of God. एक कलीसिया पैसों से नहीं बनाई जाती, विश्वास से बनाई जाती है, और विश्वास परमेश्वर के लिखित वचन से आता है. So many preachers ask me, who is your sponsor? बहुत से प्रचारक मुझसे Sir, कहते हैं, the Lord Jesus Christ, who says silver is mine and gold is mine and all the riches of heaven and earth are mine. He is my sponsor. बहुत से प्रचारक आते हैं पूछते हैं तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है. कहता हूं वो यीशु मसीह जो कहता है सोना मेरा और चांदी मेरी है, वो जो स्वर्ग का बनाने वाला है वो मेरा स्पॉन्सर है. Amen? And He can be your sponsor too. और वो आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है. When the Lord called me into full-time ministry, जब प्रभु ने मुझे फुल टाइम सेवकाई के लिए बुलाया, many men of God, many preachers told me, now brother, be ready that God will take you तो to बहुत the से valley where you will not have anything to eat. तो बहुत से प्रचारक मेरे पास आए और कहा कि अब भाई तैयार हो जाओ, परमेश्वर तुम्हें उन तराइयों में से लेके जाएगा, उन खाइयों में से लेके जाएगा जहां पर तुम्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे. But when I read in the word, लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा, वचन में पढ़ा, the word of God says, परमेश्वर का वचन ये कह रहा था, because the Lord is my shepherd, I shall not want. तो बाइबल ये कह रही थी क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी. So I had a conversation with my father. So मैंने अपने पिता से बात की. I said, Lord, मैंने कहा प्रभु, when I was working for a man, मैंने कहा जब मैं एक इंसान की कंपनी में काम कर I रहा had a था, very good salary. मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह थी, Salary used to come on time. समय पर तनख्वाह मिलती थी. Man was my employer. मनुष्य मेरा बॉस था उस समय. But now, लेकिन अब they are saying, ये लोग ऐसा कह रहे when हैं you will be my boss, कि जब आप मेरे बॉस बनोगे I'll not have things to eat. तो मेरे पास खाने के लिए नहीं होगा, I'll not have things for my kids. मेरे पास मेरे बच्चों की I'll not जरूरतें have पूरी करने नहीं fees होगा, for their school. उनके स्कूल की फीस नहीं होगी मेरे पास. And I heard the Lord's voice clearly. He said, would you believe a man or would you believe me? और मैंने परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुना. उसने कहा क्या तू एक मनुष्य की बात सुनेगा या तू मेरी बात पर भरोसा करेगा. And he said, my son, I am making a covenant with you. और उसने कहा मेरे बेटे मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं That as long as you live, you will lack nothing. कि जब तक तू जीवित रहेगा तू किसी भली वस्तु की कमी नहीं देखेगा. Amen. आमीन.
Like centurion, I got a spoken word and I grabbed it, I believed it, I received it. I said, as long as I live, I will not lack, and that has settled it till now. और उस सूबेदार की तरह जब मुझे वो बोला गया वचन मिला, मैंने उसको थाम लिया और मैं अपने आप से कहने लगा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी अच्छी बात की कमी को नहीं देखूंगा. Amen. But pastor, because of corona, the churches are shut. You will not lack. But pastor, the jobs, the business are shutting down. You shall not lack. But pastor, the Americans are taking their business back. You shall not lack. The Lord did not say that because of man you will not lack. He said, because I am your shepherd, you shall not lack. Period. लेकिन लोग तर्क वितर्क करते हैं, बोलते हैं पास्टर लॉकडाउन में कलीसियाएं बंद हो गई लेकिन तुम्हें कमी नहीं होगी. पास्टर नौकरियां जा रही हैं, व्यवसाय बंद हो रहे हैं, पर तुम्हें कभी कमी नहीं होगी. अमेरिकन लोग अपनी कंपनियां वापस लेके जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तक मैं तुम्हारा चरवाहा हूं तुम्हें कोई कमी नहीं होगी. The same God who can feed 60 lakh Israelites in a desert can feed you and your family in a pandemic, can feed you and your family no matter what crisis hits the earth. वही परमेश्वर जिसने 60 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में चलाया, 40 साल तक उनका खाना पीना सब ध्यान रखा, वो आपका और आपके परिवार की देखभाल कर सकता है, चाहे कोई भी महामारी, कोई भी तरह का लॉकडाउन क्यों ना हो. In fact, can I say this? यहां तक कि मैं ये कह सकता हूं, in the crisis, the power of God is manifested. समस्या के समय में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है. I bought my house in a pandemic. मैंने अपना घर खरीदा जब मंदी थी, जब पैंडेमिक. I bought a new car in the pandemic. मैंने एक नई गाड़ी खरीदी पैंडेमिक में. So many people in our church bought houses and cars in the pandemic. हमारी कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने घर और गाड़ियां खरीदी पैंडेमिक के अंदर. Why? क्यों? Because crisis is the best setup for God's people to shine. The Bible says, when it will be dark in the world, my people will shine. क्योंकि जब समस्या का समय होता है तो वो सबसे बढ़िया मौका होता है परमेश्वर को साबित करके दिखाने का कि उसके लोग समस्या के समय में भी उन्नति करेंगे. Amen. Amen. When it was darkness in the camp of Egyptians, there was light in the camp of Israelites. जब मिस्रियों के खेमे में अंधकार था, इजरायलियों के खेमे में उजाला था. When there was weeping and gnashing of teeth as the camp of Egyptians, there was dancing and rejoicing in the camp of the children of God. जब मिस्रियों के खेमे में रोना और विलाप करना था, परमेश्वर के बच्चों के खेमे में आनंद मनाना और नाचना गाना था. But how, Pastor? Tell me how. So many people come to me, they say, tell me how. I say this. They say, tell me how. I say, you don't get it. It's this. They say, no. I get that. Don't give me a religious answer. Tell me. लेकिन बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं हाँ वो तो ठीक है लेकिन होगा कैसे होगा. तो मैं बोलता हूँ ये वचन से होगा. बोलते नहीं वो तो ठीक है लेकिन होगा कैसे. मैं बोलता हूँ वचन से. बोलते हैं धार्मिक आंसर नहीं चाहिए, ये बताओ कैसे होगा. How is not your job. कैसे होगा ढूंढना आपकी नौकरी नहीं है. Your job is to believe. आपकी नौकरी है विश्वास करना. Jesus said only believe. यीशु ने कहा केवल विश्वास करो. If you believe, you will see the glory of God. क्योंकि अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे. He didn't say how it will happen. उसने ये नहीं कहा मैं बताऊंगा कैसे होगा. And he will never tell you how. और वो कभी नहीं बताएगा कैसे करेगा. Because if he tells you how, you will run after methods. क्योंकि अगर उसने आपको बता दिया कैसे होगा तो आप उन नुस्खों के पीछे भागोगे. Amen. Amen. Why don't we simply believe it? That's why Jesus said, man, if we can become like little kids and believe. हम आसानी से मान क्यों नहीं लेते. इसीलिए यीशु कहता है अगर हम छोटे बच्चों की तरह मान जाएं, विश्वास कर लें. Your Father आपका पिता is pleased when you walk in health, is pleased when you walk in prosperity, is pleased when you walk in His will. आपका पिता आनंदित होता है, उत्साहित होता है जब आप स्वास्थ्य में जीते हैं, जब आप आर्थिक उन्नति करते हैं, जब आपकी जिंदगी में आप उन्नति करते हैं. Amen.
in the last 12 months, people are buying houses after houses, which has never happened. If you believe. पिछले 12 महीनों में कितने लोग ने घर खरीदे हैं, जो कि लोग मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन अगर आप विश्वास करने को तैयार हो जाए. We are not after houses and cars. हम घरों के गाड़ी के पीछे नहीं भाग रहे हैं. That's not our real treasure. ये हमारा खजाना है ही नहीं है. But your Father, लेकिन आपका पिता, He gets delight. He gets delighted when He sees His kids walking in faith. आपके पिता को खुशी मिलती है, वो आनंदित हो जाता है जब अपने बच्चों को उन्नति करते देखता है. Amen. आमेन. Amen. A few weeks back, I was sharing it with Pastor Sam and Pastor Ram. I was praying and I saw this huge wheel. कुछ हफ्तों पहले मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने शेयर किया पास्टर राम और पास्टर सैम से कि मैं बहुत बड़ा व्हील पहिया देख रहा था. And now things of the Spirit are very hard to explain. But I saw this huge wheel and it started to turn it very slowly with a lot of noise. That wheel started to move. और आत्मा की बातें समझाना थोड़ा कठिन होता है. कई बार मैंने उस पहिए को देखा, बहुत बड़ा पहिया था और बहुत ही धीरे से वो हिलना शुरू हुआ और बहुत आवाज कर रहा था जब वो हिलना शुरू हुआ तो. And the Lord said, it is started. और प्रभु ने कहा शुरू हो गया है. And no man can stop it now. और कोई मनुष्य अब इसको रोक नहीं पाएगा. Amen. Can I tell you that wheel वो पहिया has started to turn. वो घूमना शुरू हो चुका है. You cannot stop it now. आप उसको रोक नहीं सकते. You will see testimonies. आप गवाहियां देखेंगे. You will hear promotions. आप तरक्कियां सुनेंगे. You will see the crazy manifestations happening. It has started. और परमेश्वर के ऐसे अद्भुत चीजों को होते हुए देखेंगे. ये शुरू हो चुका है. Amen. We told you when we had to get this place, we had 8,000 rupees. हमने आपको बताया था जब हमें ये जगह चाहिए थी, हम यहाँ देखने के लिए पहली दफा आए थे तो हमारे पास 8,000 रुपया था. 8,000 rupees. 8,000 रुपए. We needed 8 lakhs for security. 8 लाख तो सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट चाहिए था यहाँ के लिए. We signed the agreement, handshaked, done deal. The landlord had no idea we have 8,000 in our account. हमने लैंडलॉर्ड से हाथ मिलाया, बोला ठीक है 8 लाख रुपए लाके दे देंगे. उनको कोई अंदाजा नहीं था कि हम लोग के अकाउंट में 8,000 रुपए पड़े हैं. Sometimes the biggest hindrance for us to receive is our account. कई बार परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट हमारे सामने होता है हमारा अकाउंट. One day I was praying and I saw this baby in a womb. एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने गर्भ में एक बच्चे को देखा. With the umbilical cord. जिसकी नाभि की जो umbilical cord जो. So I thought maybe God is showing me a word of knowledge for some healing for someone. और मुझे लगा कि परमेश्वर किसी की चंगाई के लिए मुझे कुछ दिखा रहा है. So I said, Lord, what is this? मैंने पूछा प्रभु ये क्या है? He said, this is you. उसने कहा ये तुम हो. I said, what? मैंने कहा क्या? He said, and the womb is my womb. उसने कहा ये जो गर्भ है ये मेरा गर्भ है. And he said, like a baby doesn't have to move a finger because of the umbilical cord, is fed. He said, so all your life I'm going to feed you. और उसने कहा जैसे एक गर्भ में बच्चा होता है उसको एक उंगली तक नहीं हिलानी पड़ती खाने पीने के लिए, वैसे ही मैं तेरे साथ करूंगा. वो बच्चा जो गर्भ से जुड़ा है सारा पोषण उसको गर्भ से मिलता है, वैसे ही मैं तेरे साथ करूंगा. It's not just me. ये सिर्फ मेरे लिए We all are in the womb of God. हम सब के सब परमेश्वर के गर्भ में रखे But the हैं. problem is we don't see him as our source. लेकिन समस्या यहाँ पर है कि हम उसको एकमात्र सोता नहीं देखते अपनी जिंदगी का. Amen. Faith connects you to the account of heaven. विश्वास आपको स्वर्ग के अकाउंट से जोड़ देता है. When you believe, and faith is activated by the goodness of God. और विश्वास काम करने तब लगता है जब आप ये जान लेते हैं कि परमेश्वर भला है. So days are approaching. We have to make the payment. So दिन बढ़ने लगे और हमें पेमेंट करनी थी, वो समय आ गया. What do I do? मैंने क्या किया? I only know one thing. मुझे एक ही चीज आती है. I went to my room. अपने कमरे में I गया, lifted my hands. अपने हाथों को उठाया And I started to speak the scripture. और मैं वचन बोलने लगा. Speak the scripture. वचन बोलने लगा. What happened? क्या हुआ? This happened. ये हो गया. Amen. Amen. आमेन.
The word of God will never fail. परमेश्वर का वचन कभी भी नकारा नहीं होगा. The word of God will never fail. परमेश्वर का वचन कभी भी नकारा नहीं होगा. Amen. आमेन. If it comes out of your mouth, अगर वो आपके मुंह से निकला है, the Spirit of God will take hold of that तो पवित्र आत्मा उस वचन पर कब्जा कर लेगा and create it. और उसको पूरा करेगा. That's why God says in His Word, He says, "Put me in remembrance." इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मुझे याद दिलाओ. Not because our God forgets, He has schizophrenia. इसलिए नहीं कि परमेश्वर भुलक्कड़ है, उसको भूलने की बीमारी है. No, because He wants that we'll start speaking the Word. लेकिन इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके वचन में जो लिखा है वो बोलना सीखें. Amen. Peter was toiling all night. पतरस सारी रात मेहनत करके आया था. Most of you have been toiling for months. आप में से बहुत से लोग तो महीनों से मेहनत कर रहे हो. You think your answer is another job with better salary. आपको लगता है आपका उत्तर आपको तब मिलेगा जब एक इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिसमें इससे ज्यादा तनख्वाह मिलती है. Or you think your answer is if you start your own business. और या फिर आपको लगता है आपका उत्तर आपको तब मिलेगा जब आप खुद का बिजनेस शुरू कर दोगे. If God wants that, do that. अगर परमेश्वर ऐसा चाहता है तो करो. But the answer is not that. लेकिन उत्तर वो नहीं है. The answer is the spoken word of God. उत्तर है परमेश्वर का बोला गया वचन. Amen. So Jesus comes to Peter and says, "Peter, cast your net on the right side." यीशु पतरस के पास आते हैं, कहते हैं पतरस अपना जाल दाहिनी ओर डाल दे. He says, "Lord, I have been doing that all night." पतरस ने कहा प्रभु सारी रात तो यही करके आया हूँ. The same thing that he was doing. जो वो कह रहा था वही करके आया हूँ. But after he hears the word, the same thing that he will do will be mixed with the favor of God. लेकिन जब उसने वचन सुन लिया तो जब वो उस बात को करेगा जो वो सारी रात करके आया तो उसमें परमेश्वर की तरफदारी मिली होगी. Amen. And then when Peter does it, और net breaking, boat sinking, harvest of fishes. और तब जब पतरस ने ऐसा किया, वचन को सुनने के बाद जब उसने ऐसा किया तो जाल तोड़ने वाली, नाव डुबाने वाली मात्रा में मछलियां पकड़ ली. Why do you think the net was breaking? आपको The क्यों- boat was sinking. क्यों लगता है जाल टूट रहा था, नाव डूब रही थी? Because our Father wants to tell us that His ability to provide for us is much greater than our ability to receive. क्योंकि हमारा पिता हमें यह बताना चाहता था कि हमारे लिए प्रबंध करने की परमेश्वर की क्षमता हमारे ग्रहण करने की हिम्मत से भी बहुत ज्यादा बढ़कर है. Amen. And there was a man in the Bible, Jabez, and he understood it. Jabez. और बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम याबेस था और वो ये बात समझता था. He understood it. He didn't say, "God, give me new business." उसने ये नहीं कहा प्रभु मुझे नया व्यवसाय दे दो "Oh, God, give me a new job." या एक नई नौकरी दे दो. He said, "God, enlarge my territory. उसने कहा प्रभु मेरे प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ा दो, Enlarge my capacity to receive from you." आपसे ग्रहण करने के लिए मेरी क्षमता को बढ़ा दो. Amen. Because he knew God as a source. क्योंकि वो जानता था परमेश्वर उसका सोता है. Are you getting it, church? क्या आप समझ रहे हैं कलीसिया? Can I tell you that Lord is raising churches in India that will walk by faith. क्या आप जानते हैं परमेश्वर भारत देश में ऐसी कलीसियाओं को उठा के खड़ा कर रहा है जो विश्वास से चलेंगे. For long we have looked to West for finances. बहुत समय से हम पश्चिमी देशों की ओर देखते आए पैसे के लिए, मदद But के लिए. Lord is raising church that will provide for West, that will give enough of us receiving. Now it's time we give back to them. We are thankful for what they did, but it's time the church, a new church is rising in India. Amen. क्योंकि बहुत समय से कलीसिया पश्चिमी देशों की ओर देखता आया मदद के लिए और हम धन्यवादित हैं उन देशों के लिए जो कुछ उन्होंने हमारे देश के लिए किया. लेकिन अब समय है कि हम उनके लिए कुछ करें. अब यह समय है कि हम वापस लौटाएं जो उन्होंने हमारे लिए किया उसको. Amen. Somebody was telling my dad in our society, "Oh, these Christians, they give you money and they want to convert your religion." My dad said, no, they don't give you money. You have to go there, you have to give money. So, हमारे बिल्डिंग में कोई है जो मेरे पिता से बात करते और कह रहे थे कि ईसाई लोग आपको ईसाई बनाने के लिए पैसा देते हैं. और वो तो मेरे पापा कहने लगे नहीं, पैसा नहीं देते हैं आप. जब आप चर्च जाते हैं तो बल्कि आपको पैसा देना पड़ता है वहां जाके. Amen.
enough of us receiving for a long time. It's time we give back. बहुत हो गया हम लोग ग्रहण करते हैं, अब समय है कि हम वापस देना शुरू करें. Amen. And can I tell you, और कुछ बताऊं, I'm telling you, I'm speaking this under the unction of the Holy Spirit. India will be one of the greatest missionary sending nations. You see it. It is happening. The Lord is raising men and women of God, men and women of faith who will rise up, walk by faith, and they will be the ones going to the nations. भारत सबसे बड़ा देश होगा, मिशनरीज को दूसरे देशों में भेजने वाला. परमेश्वर के बेटे और बेटियां उठ खड़े होंगे जो दूसरे देशों में मिशंस के लिए जाएंगे यहां से. Amen. It has started. शुरू हो चुका है. I was in Africa, I was in Uganda, deep villages, and they told me, you are the first Indian missionary who came here. मैं अफ्रीका युगांडा में गया और वहां पर उन्होंने जब वो मुझसे मिले तो कहा कि आप पहले भारत से आए हुए मिशनरी हो यहाँ पर. Amen. And that is going to happen. और ऐसा होगा. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Things that eyes have not seen and ears have not heard, your Father has prepared for you. Get ready to encounter them. जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने सुना नहीं, जो किसी के चित्त में नहीं समाया, आपके पिता ने आपके लिए तैयार करके रखा है. तैयार हो जाओ. God has a big surprise for his lovers. परमेश्वर के पास बहुत बड़ा सरप्राइज है अपने प्रेमियों के लिए. Amen. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? We just have to become those people who will fill our heart with the word. लेकिन सबसे पहले हमें वो लोग बनना जरूरी है जो अपने दिल को उसके वचन से भर Day डालें. in, day out, eat the word, speak the word, speak the word, speak the word. Even if you don't see anything changing, keep speaking by faith. दिन और रात वचन को अपने दिल में भरते जाओ, उसको बोलते जाओ. जब कुछ बदलता हुआ ना नजर आए फिर भी वचन की घोषणा करते चले जाओ. Amen. Because maybe I'll teach you next time about, the more I'm reading quantum science, the more amazing it is how faith works. जितना ज्यादा मैं क्वांटम साइंस पढ़ रहा हूँ उतना ज्यादा मैं देख रहा हूँ कितना अद्भुत है कैसे विश्वास काम करता है. When you speak, जब आप कुछ बोलते हो things start to change at subatomic level. तो जो सबसे छोटा सृष्टि का अंश है उस स्तर पे बदलाव होना शुरू हो जाता है. We are not able to see it, but there are things that change. The vibrations change, the energy change, the frequency change. When you speak, words carry energy. हमें वो अपनी इन नजरों से तो नजर में नहीं आता, लेकिन वो अदृश्य रूप में हर एक बात बदलने लग जाती है. जब हम कुछ कहते हैं हमारे कहने में वो ऊर्जा, वो शक्ति है, वो क्षमता है. Amen. When Jesus saw that fig tree, जब यीशु ने वो अंजीर का पेड़ देखा there had no fruit. जिस पर कोई फल नहीं था. The Bible says he cursed it. यीशु ने उसको श्राप दिया. And then Jesus and the disciples went their way. और जब यीशु और उसके चेले चले गए, the next day they were coming back. जब वापस आ रहे थे उसी रास्ते से, Peter got excited. He said, Lord, this is the same tree. Look, it's withered. From roots till up, it's all withered. पतरस बहुत उत्साहित हो गए देख करके, बोला प्रभु देखो वो पेड़ तो बिल्कुल सूख गया जिसको आपने श्राप दिया था, जड़ से सूख गया. When Jesus spoke, that time they didn't see any manifestation. जब यीशु ने बोला था उस समय कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया. But things had started to change, which they were not able to see at that time. लेकिन एक अदृश्य स्तर पे बदलाव होना शुरू हो गया था जो उनको दिखा नहीं उस समय. Start speaking the word of God. परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कर दो. Amen. Amen. Start speaking the word of God day and night. परमेश्वर के वचन को दिन और रात बोलना शुरू कर दो. Open your Bibles to Joshua 1:8. यहोशू 1 उसके 8 पर अपनी बाइबल खोलें. How many people want good success? Anybody? कितने लोग अच्छी सफलता चाहते हैं जिंदगी में? Now, words like success and prosperity and blessing now have bad reputation in churches. और सफलता, समृद्धि, इन सारी बातों की बहुत ही बुरी हैसियत है कलीसिया में आजकल. Then rub them off from your Bible. तो अपनी बाइबल में से भी मिटा दो उनको. It's God who said that. परमेश्वर ने बोली है ये बातें. Amen. Amen. Joshua 1:8. The book of the law shall not depart from where? Your mouth. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुख से कभी उतरने ना पाए. I'll say it again. दोबारा कहता हूं. Church, come on, receive it, okay? This book of the law shall not depart from your mouth.
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, but you shall meditate in it day and night, लेकिन इसी पर दिन और रात ध्यान करते रहना, that you may observe to do according to all that is written in it. इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के लिए तू चौकसी करे। For then you will make your way prosperous, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, and then you will have good success. और तब तू प्रभावशाली होगा, अच्छी तरक्की पाएगा। If there is a good success, there is also a bad success. अगर अच्छी सफलता है तो बुरी सफलता भी होगी शायद। There are many people who opened businesses. बहुत से लोगों ने व्यवसाय शुरू किए, Their business became amazing, but they lost their families. उनके व्यवसाय तो बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर चले गए, लेकिन उनके परिवार उनसे दूर हो गए। Now that's not good success. ऐसा होना अच्छी सफलता नहीं है। Do you know prosperity is not just money? क्या आपको पता है समृद्धि केवल पैसा नहीं है? Come on. The word shalom means nothing broken and nothing missing from your life. शालोम शब्द का अर्थ है आपकी जिंदगी से कुछ भी टूटा हुआ नहीं होगा, कुछ भी गायब नहीं होगा, जिसको जहां होना चाहिए वहां मिलेगा। Having a loving family is prosperity. एक प्यार करने वाला परिवार होना समृद्धि है। Having a believing husband is prosperity. Having a believing wife is prosperity. एक विश्वास करने वाला पति होना, विश्वास करने वाली पत्नी होना समृद्धि है। Kids that love the Lord and walk in the way of the Lord is prosperity. वो बच्चे जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसके रास्तों पर चलते हैं, ये समृद्धि है। Amen. It's not having a lot of money is not prosperity. बहुत सारा पैसा होना समृद्धि नहीं है सिर्फ। There are many people who have a lot of money and are poor in God's eyes. बहुत से लोग हैं जो बहुत पैसा है जिनके अकाउंट में, लेकिन परमेश्वर की नजरों में बहुत गरीब हैं वो लोग। So God is saying, hey, if you want good success, परमेश्वर ये कह रहा है अगर अच्छी सफलता चाहते you do not have to buy 10 self-help books how to get good success. All you have to do is meditate on my word. 10 किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है कि अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, लेकिन केवल मेरे वचन पर मनन कर लो। Amen. If you would only meditate on the word of God, अगर केवल आप परमेश्वर के वचन पर मनन करने लग गए, so that the word from here goes here. ताकि वो वचन यहां से यहां पर उतर जाए। And when the word of God goes from here in your heart, what happens? It starts coming out of your mouth. तो जब वचन यहां से यहां आ जाता है तो आपके मुंह से निकलने लगता है। Jesus said, out of the abundance of heart, mouth speaks. यीशु ने कहा दिल की बहुतायत में से हमारा मुंह बातें करता है। Do you want to know what is in your heart? क्या आप जानना चाहते हो आपके दिल में क्या भरा हुआ है? See what comes out when you're in a bad traffic. तो वो सुनो जो आपके मुंह से बाहर आता है जब गंदे ट्रैफिक में फंसे हो। When your heart is squeezed, what comes out of your mouth? जब आपके दिल को पिचकाया जाता है तो मुंह से क्या निकल के आता है? You know, if you will Pepsodent, Colgate won't come out. अगर आप पेप्सोडेंट को लेंगे और दबाएंगे तो कोलगेट बाहर नहीं You आएगा। know, some people say, इनका ना बस मुंह बहुत गंदा है, दिल बहुत अच्छा है. Have you heard that? Have you heard that? That's not true according to the word. वचन के मुताबिक ये बात सच नहीं है। Whatever is spilling out of the mouth, it's because of the overflow of the heart. जो कुछ मुंह से बहुतायत से निकल रहा है वो इसीलिए निकल रहा है क्योंकि दिल में वो बहुतायत से भरा हुआ है। That's why don't wait for storms to come and then you fill your heart with the word. इसीलिए इंतजार ना करें कि आंधियां कब आएंगी और मैं कब अपने दिल को वचन से भरूंगा। No, no, no. जी नहीं। Fill your heart with the word today. अपने दिल को आज वचन से भर लो। Fill your heart with the word today. आज वचन से भर लो अपने आप। So that when the enemy comes to tempt you, ताकि जब शैतान आपको परखने के लिए आता है, like Jesus, you can say, Satan, it is written. जैसे जब शैतान यीशु को परखने के लिए आया तो यीशु ने जवाब दिया, शैतान ऐसा लिखा है। Amen. You won't say, Satan, wait. आप कहेंगे शैतान रुक। Let me open my Google. मैं गूगल ढूंढता हूँ, रुक। What was that Sunday? क्या कुछ तो लिखा था वचन में, कुछ तो था। No, 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 no. जी नहीं। This word. ये वचन, You know, the Bible says, don't say in your heart, who will ascend for me? Who will go on the cross? Jesus, whatever God had to do for us, He has done it. बाइबल कहती है अपने दिल में ये मत कह कि कौन मेरे लिए स्वर्ग पर चढ़ेगा। जो कुछ हमारे लिए करने की आवश्यकता थी यीशु ने पूरा कर दिया। Can I say this again? दोबारा कहूं,
God has already done everything for you. यीशु ने पहले ही आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है. As far as God is concerned, He has blessed you with every spiritual blessing and put you in Christ, seated far above principalities and powers and might and dominion and every name that is to be named, not only in this age, but in the ages to come. जहां तक मुद्दा परमेश्वर का है, जहां तक बात परमेश्वर की है, उसने पहले से ही आपको आशीषित कर दिया है और आपको स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ वहां बैठा दिया है. जो स्थान हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक प्रधानता, हर एक दुष्ट की ताकत से ऊपर है, उससे परे है, ना केवल आज लेकिन आने वाले युगों में भी. Can I say something? You are wasting your time praying